Morning children, welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you next part of chapter 4, television. Children, in previous video I have already told you about that poet does not like to installation the TV, but he likes that children should read more and more books. Now today I'll start from these lines. We shall say it very loud and slow. They used to read, they read and read and read and read and then proceed to read some more. Great Scott Gazogs, one half their lives were reading books. The nursery shelves held books galore. इसमें पोएट बोलते हैं कि जब पहले कभी टीवी नहीं था तो बच्चे बुक रीड करते थे, इंटरटेनमेंट अपने आप को करते थे और उससे बहुत इंटरटेन होते थे। लोगों की आधी ज़िंदगी पढ़ने में गुजर जाती थी। बुक्स बहुत एक्साइटमेंट से भरा रहता था। पहले के ज़माने में बच्चों के रूम्स शेल्फ्स बुक्स से भरी होती थी। Next paragraph. Book cluttered up the nursery floor, and in the bedroom by the bed, more books were waiting to be read. Such wanderers find fantastic tales of dragon, gypsies, queens, and whales, and treasure island and distant shores when smugglers rode with the muffled oars and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants. The cannibals coughing round the pot, steering away of something hot. इसमें पोएट बोलते हैं कि पहले बच्चों के रूम्स जो होते हैं सारे तरफ बुक्स से भरी होती थी। बुक्स फ्लोर पर पड़ा रहता था, बेड पर पड़ा रहता था, इधर उधर बुक्स और कुछ बुक्स वेटिंग में रहता था कि एक बुक ख़त्म हो तो दूसरी बुक शुरू करें। पोएट बताते हैं कि बुक्स कितनी इंटरेस्टिंग हो जा करती थी। उसमें ड्रैगन की कहानियाँ होती थी, एडवेंचर्स की कहानियाँ होती थी, रानियों की कहानियाँ होती थी, खजानों की कहानियाँ होती थी, डाकुओं की कहानियाँ होती थी। इस प्रकार हम बुक्स में तरह तरह के वैरायटीज़ पढ़ते थे। हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से बुक्स पढ़ता था और बहुत अपने आप को इंटरटेनमेंट करता था। The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd, the Dirty Rotter, and Squirrel Nutty, Pigling Bland, and Mr. Traggy Winkle, and just how the camel got with hump, and how the monkey lost his hump, and Mr. Toad, and bless my soul, there with Mr. Rates and Mr. Mole. Oh, books, what books they used to know those children living long ago. इसमें पोएट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर से टीवी को घर से बाहर कर दो और टीवी की जगह एक अच्छा सा बुक शेल्फ लगा दो जिसमें तरह तरह की वैरायटीज़ वाली बुक्स रहेंगी, तरह तरह की स्टोरी वाली बुक रहेंगी जिससे बच्चे पढ़ेंगे और अपने आप को बहुत इंटरटेनमेंट करेंगे और उनका दिमाग भी खुल जाएगा और फालतू की चीज़ों से जो टीवी में देखते हैं उससे वो दूर हो जाएंगे। Next paragraph. So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away and in the place and install a lovely bookshelf. और बच्चों पेरेंट्स से कहते हैं कि आप प्लीज़ अपने टीवी को घर से बाहर हटा दीजिए, फेंक दीजिए और इसकी जगह एक बुक शेल्फ लगाइए। इसमें से अच्छी अच्छी तरह तरह की आप उसमें बुक रखिए जिससे बच्चे अधिक से अधिक रीड कर सके और अपने आप को ज्ञान से भर सके। Then fill the shelves and lots of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yells, and the bites and kicks, and children hitting you with the stick. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they will now begin to feel a need of having something to read. इसमें पोएट कहते हैं कि आप गार्जियन पेरेंट्स से कहते हैं कि आप बुक शेल्फ को अच्छी अच्छी किताबें ला के रख दो उसमें। यदि आप टीवी बाहर कर देते हो और तो बच्चे शुरू शुरू में तो चिल्लाएंगे, काटेंगे, दौड़ेंगे, गुस्सा होंगे और डंडे से मार भी मारेंगे, लेकिन आपको उनके डर्टी लुक्स को इग्नोर करना है और उनकी बात को ध्यान नहीं देना है। टीवी को घर से बाहर फेंक दीजिए और उसकी जगह बुक शेल्फ ला करके अच्छी अच्छी वैरायटी के उसमें बुक्स आप रख दीजिए। Now last stanza. And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts. They will grow to so keen, they will wonder what they had ever seen in that ridiculous machine, that non-sticking soul, unclean, rough
television screen and later each and every kid will you love and more for what you did. इन लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब कभी घर में आप टीवी आपके नहीं होगा तो आपको अपने बच्चों के बिगड़ते हुए बिहेवियर को देखकर डरना मत, थोड़े दिन वेट करना। और पोएट बोलती कि मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन 1-2 हफ्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। जब बच्चों के पास कुछ भी नहीं होगा देखने के लिए तो वो बुक को रीड करेंगे और इस बुक को अच्छे से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। पहले तो बच्चे खाली टाइम में टीवी देखते थे, लेकिन जब टीवी नहीं होगा तो खाली टाइम में बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ बुक्स रीड करेंगे। एक बार जब उनको बुक रीड करने की आदत पड़ जाएगी तब उन्हें पता लगेगा कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय और जॉय किसे कहते हैं उनको असलियत उनको मालूम पड़ जाएगा। और खुशी क्या होती है तब बच्चों को पता लगेगा टीवी कितनी बेकार मशीन थी और उन्हें टीवी से नफ़रत हो जाएगी। फिर बच्चों को रियलाइज़ होगा कि उनके पेरेंट्स ने यानी कि आपने उनके लिए कितना अच्छा काम किया है और बच्चे अपने को आपको ज़्यादा और प्यार करेंगे और अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।